Hi. So if you are preparing for RBI Grade B 2025, this is the video for you. In this video, I would be telling you about the complete roadmap for all the phases, for all the subjects in this one single video along with trusted sources. And in case you are new to RBI, you can download this guidebook which will give you all the information to crack this exam. You will also get previous year papers of RBI. You will also get access to decoded syllabus and the book list to crack this exam. This is entirely free to download. You can download this by using a link which is given in the description of this video. Now, the first question that comes to mind is that when does the notification comes usually? There is no fixed date, but if you analyze the past year trend, the notification usually comes somewhere between April to June. ठीक है, तो अभी बहुत टाइम है 2025 के एग्जाम में, आप तैयारी कर सकते हैं. क्या ये एग्जाम रेगुलर है? बहुत सालों से हो रहा है, पिछले 12-13 साल से आई एम ट्रैकिंग इट. एक्सेप्ट इन द कोविड ईयर इट हैज हैपेंड एवरी ईयर. ठीक है, हाँ इतना जरूर है कि हम इसको आरबीआई ग्रेड बी के नाम से जानते हैं. नाउ देयर आर सम रूमर्स दैट नेक्स्ट ईयर इंस्टेड ऑफ ग्रेड बी ग्रेड ए माइट कम. नोबडी इज श्योर अबाउट दैट, बट एट द एंड ऑफ द डे इफ यू आर सीरियस टू गेट इनटू आरबीआई, यू जस्ट कीप प्रिपेयरिंग. जो भी आएगा आप उसके लिए अपीयर कर लेंगे. नाउ इज दिस एग्जाम टफ? यस एंड नो. कंपटीशन तो है इस एग्जाम में. अगर 1 लाख बच्चा अपीयर करता है तो सिर्फ 100 से 200 बच्चा इस एग्जाम को क्लियर करेगा. ठीक है, सो इफ वी गो बाय दिस नंबर द कंपटीशन इज रियली हाई, बट इफ आई वांट टू टेल यू द रियल कंपटीशन दैट वुड बी हार्डली 10,000 बिकॉज ओनली दिस नंबर ऑफ पीपल वुड बी प्रिपेयरिंग सीरियसली फॉर दिस एग्जाम. डिफिकल्टी लेवल की बात करूं तो फेज 1 एक ऐसा फेज है जो काफी टफ आता है एंड इट इज दैट फेज जहां पे मैक्सिमम लोग बाहर होते हैं. तो ये एक डिफिकल्ट फेज है, चैलेंजिंग फेज है. Phase 2 is bit of consisting of technical subjects like finance and economics, but I would say the questions are as a very generic. We will discuss more about that in the upcoming part. But मुझे लगता है कि ये इतना टफ नहीं है जितना कि phase 1 टफ है. 3 चीजें जो आपको बहुत जरूरी चाहिए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए. फर्स्ट इज क्लैरिटी. आप इस एग्जाम को तभी दें इफ यू आर श्योर दैट यू वांट टू वर्क हार्ड टू क्लियर दिस एग्जाम. सिर्फ सोच कर नहीं होगा. अगर आप 10 एग्जाम्स के लिए और प्रिपेयर कर रहे हैं, साथ में आरबीआई के लिए भी करना चाहते हैं, इट वोंट हेल्प. Second is please go through the past year papers again and again because they will give you a lot of clarity as in what kind of questions are asked and you would be able to prepare kind of a pinpointed preparation. And keep reading newspapers. After the exam has become descriptive, lot of descriptive questions are being asked from the editorial part. So reading newspapers is a very important habit that you need to inculcate and this will also help you in the interview. अब हम एग्जाम के डिफरेंट फेजेस के बारे में बात करेंगे और हर फेज में जो भी सब्जेक्ट है उनकी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे. सो द एग्जाम कंसिस्ट ऑफ 3 phases. Phase 1 is qualifying, phase 2 is merit based and after that there is a interview. Let's start with phase 1 first. Phase 1 में there is one paper. It consists of 4 sections. GA 80 questions, reasoning 60, English 30, Quant 30. So total there are 200 questions. Each question worth 1 mark. There would be 200 marks worth of paper. The time is 120 minutes, but this is divided into sectional timing where for reasoning you get 45 minutes and for every other section you get 25 minutes. तो आपको इन्हीं टाइमिंग में ये sections complete करने होंगे. एग्जाम को क्लियर करने के लिए यू नीड टू क्लियर द सेक्शनल कट ऑफ. दैट इज देयर वुड बी अ कट ऑफ इन ईच ऑफ दीज सेक्शंस व्हिच वुड वेरी ईच ईयर डिपेंडिंग अपॉन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर and you would also have to clear the overall cutoff that would again be different each year depending upon the difficulty level of the paper and there is a negative marking of 1/4. अब सारे सब्जेक्ट्स की स्ट्रैटेजी को डिस्कस करते हैं. क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग, जीए. लेट मी स्टार्ट विद क्वांट. सो दिस इज द सिलेबस ऑफ क्वांट. ठीक है, ये सिलेबस नोटिफिकेशन में नहीं गिवन है बट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर पेपर्स वी हैव जॉल्टेड डाउन दीज टॉपिक्स. मैं एक एक टॉपिक करके नहीं बताऊंगा, आप इनको पॉज कर वीडियो को पॉज कर नोट कर सकते हैं. बट द पॉइंट दैट कम्स टू माई माइंड और दैट शुड कम टू योर माइंड इज दैट शैल यू बी डूइंग ऑल दिस चैप्टर्स? द आंसर इज नो, बिकॉज इफ आई वांट यू टू टेक थ्रू द कट ऑफ्स फॉर क्वांट इन द पास्ट सो मेनी ईयर्स, यू कैन सी दैट द कट ऑफ हैज बीन मैक्सिमम एट 7.5 इन ऑल दीज ईयर्स. ठीक है, तो आपका टारगेट 30 में से कोई 20 नंबर लाना नहीं है. आई थिंक 8 to 10 स्कोर इज अ डिसेंट स्कोर. मोर ओवर इससे ज्यादा स्कोर करना बहुत मुश्किल है बिकॉज यू विल जस्ट गेट 25 minutes टू सॉल्व 30 questions and the questions are of high difficulty level. So it won't be possible to solve all the questions in 25 minutes. At the max you will be able to solve 8 to 10 questions. So my view is very clear कि आप सारा पेपर तो सॉल्व नहीं कर सकते और आपको करने की ज़रूरत भी नहीं है बिकॉज 8 to 10 स्कोर इन माई ओपिनियन इज अ वेरी गुड स्कोर.
तो आप कुछ प्रायोरिटी टॉपिक्स चुनो. These priority topics can depend upon what your strengths are, but I can suggest you time and work, time, speed, distance, percentages, ratio, proportion, number series, quadratic equations, profit and loss, interest and data interpretation. ये सारे टॉपिक्स जो आप करें, आप इनको बहुत अच्छे से करें, डिफरेंट लेवल ऑफ क्वेश्चंस करें, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करें, और कम से कम यू शुड बी डूइंग 200 to 250 क्वेश्चंस एंड गिव लॉट ऑफ सेक्शनल टेस्ट. Because in the exam, the main problem you will face is that you will not be able to manage your time and anxiety, and giving a lot of sectional tests will help you adapt to that. आप questions को सही से select करना सीख जाएंगे, जो बहुत ज़रूरी है. और ये कुछ books हैं जो आप use कर सकते हैं. Quantitative Aptitude for CAT by Arun Sharma. There is another Data Interpretation अरुण शर्मा की. सो DI के लिए इसको यूज कीजिए, बाकी टॉपिक्स के लिए इसको यूज कीजिए, एंड यू कैन यूज दिस बुक फॉर सम एडिशनल प्रैक्टिस. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय RS अग्रवाल. बट दीज टू बुक्स आर द बेस्ट, द फर्स्ट टू आई वुड से इन माय ओपिनियन. और उसके बाद आती है रीजनिंग की बारी. रीजनिंग में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस में है. अगेन दीज आर लिस्टेड हियर डिपेंडिंग अपॉन, आई मीन वी हैव jotted down these topics based upon the previous year paper analysis. You can just pause this video and note it down by yourself. But shall you be doing all these chapters? Again, if you see the cutoff for reasoning, it has been maximum at 15 in past so many years. इससे कम ही गई है. So out of 60, your target score is not 40. ठीक है, scoring 20 marks I would say would be enough, or it would be a good score. और आप इतना ही स्कोर कर पाओगे, या चलो 20 नहीं तो यू माइट बी एबल टू स्कोर 25, बिकॉज पेपर का लेवल इजी नहीं है. यू हार्डली गेट 45 मिनट्स इन एग्जाम फॉर 60 क्वेश्चंस. यू विल नॉट बी एबल टू रीड all the 60 questions in 45 minutes. So if you can get 20-25 in these 45 minutes, that would be a really good performance. तो again I would say there are some priority topics, क्योंकि आप सारे questions तो एग्जाम में वैसे भी नहीं कर पाओगे. तो आप कुछ टॉपिक्स करो. सबसे पहले ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, रिवर्स सिलोजिज्म, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, रैंकिंग, इनइक्वालिटी. ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए while you are preparing. In the exam also your first priority should be to solve questions from these topics. फिर आपको पजल्स की प्रिपरेशन करनी चाहिए, जिसमें आप नॉर्मल पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट्स करेंगे. इनको छोड़ना नहीं है. मैंने इसको P1 बोला है, इसको P2 बोला है, बट दोनों का एग्जाम में आउट ऑफ 60 30 का वेटेज है. मतलब पजल्स भी आपके 30 नंबर के आएंगे, बट पजल्स आर रिस्की. बहुत बार लोग पजल्स करना शुरू कर देते हैं, सॉल्व नहीं होता है तो टाइम बर्बाद होता है. इसीलिए मैं कह रहा हूँ फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दो, पढ़ने में भी और एग्जाम में भी क्वेश्चंस करने में. दूसरी प्रायोरिटी इसको दो, एंड हैव अ टारगेट स्कोर ऑफ 20 to 25 आउट ऑफ 60 इन रीजनिंग. ठीक है, और रीजनिंग में भी क्वांट की तरह बहुत सारे सेक्शनल टेस्ट करो. वॉट एवर चैप्टर यू डू, उनमें बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, एंड दीज आर दी बुक्स यू कैन यूज. वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल, लॉजिकल रीजनिंग बाय अरुण शर्मा. ठीक है, और इसमें भी कुछ टॉपिक्स हैं रीजनिंग के जो आपको इनमें नहीं मिलेंगे, दैट यू कैन डू फ्रॉम योर क्वांट बुक दैट आई हैव रिकमेंडेड अर्लियर. पर मेनली दो बुक्स जो आपकी रहेंगी वो पहली दो रहने वाली हैं जो इस स्क्रीन पर हैं. नाउ व्हाट इज द स्ट्रैटेजी फॉर इंग्लिश? सी, इंग्लिश इज एक्चुअली लर्निंग ग्रामर विच इज लर्नड इन स्कूल. सो इफ यू आर नॉट गुड इन इंग्लिश ग्रामर, आई थिंक देयर इज नो पॉइंट brooding over it and trying to do it, because it's a very time consuming process. Instead, I would like you to focus on mocks, sectional tests, try to increase your performance through reverse engineering. That would be the best strategy to cover English in the limited time. तो उसके लिए reverse engineering के लिए I would recommend Objective Journal English by SP Bakshi, and to increase your vocabulary, which is anyways important, I would suggest Word Power Made Easy by Norman Lewis. एंड इन केस आप ग्रामर सीखना चाहते हैं सो रेनन मार्टिन पढ़िए. आई थिंक इससे बेटर बुक नहीं है. नाउ कमिंग टू द फोर्थ सेक्शन. सो वी हैव डिस्कस 3 सेक्शंस. ठीक है, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश टिल नाउ. तो हमने क्वांट, इंग्लिश और रीजनिंग डिस्कस कर लिया है. नाउ फॉर फेज 1 देयर इज अनदर सेक्शन, जर्नल अवेयरनेस, जिसको हम डिस्कस करेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. जर्नल अवेयरनेस इज 80 मार्क्स इन योर पेपर आउट ऑफ 200 इन फेज 1. मतलब 40% वेटेज इज ऑफ दिस सेक्शन. अब इस सेक्शन में आता क्या है? इस सेक्शन में देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एरियाज और वेरियस टाइप्स ऑफ करंट अफेयर्स विच आर आस्क्ड, जिसमें स्कीम्स, रिपोर्ट्स, RBI नोटिफिकेशंस, फाइनेंस करंट अफेयर्स, ESI करंट अफेयर्स, नॉर्मल करंट अफेयर्स एंड द स्टैटिक पार्ट. और ये इनका रिस्पेक्टिव वेटेज है. अब एक चीज अगर आप ध्यान देंगे, जो मैक्सिमम वेटेज है यहाँ पे वो है RBI नोटिफिकेशंस का. और अगर मैं RBI नोटिफिकेशंस के साथ फाइनेंस करंट अफेयर्स इंक्लूड कर लूं, इसका मतलब है कि जो फाइनेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं, दे आर हैविंग अ वेटेज ऑफ अराउंड 30 मार्क्स आउट ऑफ 80.
ठीक है, 30 मार्क्स आउट ऑफ 80. सो दिस इज नियर अबाउट आई वुड से 40%. मतलब 80 का जो 40% है, 32 होता है, वो आपको फाइनेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स में से आ रहा है. बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो नॉर्मल करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, जैसे कि बुक्स, अवार्ड्स, ऑब्ituaries, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, डिफेंस एक्सरसाइजेस, मिलिट्री इक्विपमेंट्स एंड ऑल दैट, जो नॉर्मल करंट अफेयर्स होते हैं बैंकिंग वाले. But these current affairs are not useful in RBI. तो बहुत सारे लोग अपनी RBI की करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन ना बैंकिंग के करंट अफेयर्स से करते हैं, थिंकिंग दैट इट विल बी ऑल्सो सफिशिएंट फॉर RBI, but that is not the case. RBI में जो करंट अफेयर्स आ रहे हैं वो बिल्कुल अलग हैं. जैसा मैंने आपको दिखाया, RBI नोटिफिकेशंस और फाइनेंस करंट अफेयर्स का 40% वेटेज है. And even if I talk about schemes and reports, they are not as much in your banking current affairs. Even if they are asked at a very superficial level. तो ये एरिया भी आप वहाँ पे नहीं पढ़ते हैं. So due to this, I would say कि आप प्लीज अपनी बैंकिंग वाली जो सोर्सेज है ना, उनको आरबीआई के लिए मत यूज कीजिए. कमिंग बैक टू द वेटेज पार्ट, तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, आरबीआई नोटिफिकेशन एंड फाइनेंस करंट अफेयर्स. नेक्स्ट आई वुड से schemes and reports, they are also very important part, they have a very healthy weightage. स्कीम्स का वेटेज पहले ज्यादा होता था, अब कम हो रहा है, बिकॉज जो वेटेज स्कीम्स का कम हो रहा है वो आरबीआई नोटिफिकेशंस में जा रहा है. उसके बाद ईएसआई करंट अफेयर्स आते हैं, नॉर्मल करंट अफेयर्स हैं 15 से 18 मार्क के और स्टैटिक 5 to 7 मार्क्स. नाउ आई विल एक्सप्लेन यू ऑल दीज एरियाज वन बाय वन, डोंट वरी. उससे पहले मैं आपको डिटेल में बताऊंगा ये क्या है. हमें करंट अफेयर्स कितने मंथ्स के पढ़ने हैं. फॉर फेज 1 एग्जाम 3 to 5 months of current affairs is good. 5 is ideal I would say. अगर आप 5 महीने के करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ जाएं, आपका फेज 1 कोई नहीं रोक सकता. बट इफ यू हैव लेस टाइम, यू आर वर्किंग, यू हैव अदर फैमिली कमिटमेंट्स, देन यू कैन इवन रीड 3 months ऑफ करंट अफेयर्स. बिकॉज मैं आपको 2024 का ही एग्जाम्पल दूंगा. फ्रॉम द इमीडिएटली प्रोसीडिंग 3 months ऑफ द एग्जाम, ठीक है, जो एग्जाम के पहले 3 महीने थे, उसमें से 21, 13, मतलब अराउंड 55 मार्क्स का पेपर आपका आउट ऑफ 80 सिर्फ 3 months के करंट अफेयर से आए. और अगर मैं 5 months के जोड़ लूं, सो दिस इज अराउंड 66, विच इज ह्यूज. आप बोलेंगे सर बाकी 14 मार्क्स का कहां से आया? भाई कहीं और से आया है, बट यू कैन नॉट बी परफेक्ट इन जनरल अवेयरनेस, ट्राइंग टू डू एवरीथिंग. वो पॉसिबल नहीं है. उसके चक्कर में 5 months का भी रिमेंबर नहीं कर पाओगे. सो 5 months का ही टारगेट रखो. अब स्कीम्स और रिपोर्ट्स की जो क्वेश्चंस हैं, कैसी स्कीम्स आती हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, दैट आई वुड डिस्कस एज पार्ट ऑफ फेज 2 डिस्कशन. क्योंकि ये स्कीम्स और रिपोर्ट्स फेज 2 में भी आती हैं, मैं वहां पे डिस्कस करूंगा. आरबीआई नोटिफिकेशंस आर दी रेगुलेशंस पास्ड बाय आरबीआई विच आर अवेलेबल ऑन दी आरबीआई वेबसाइट. इनमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, मोस्टली फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं. मतलब जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं कि डिपॉजिट लिमिट शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स की जो आरबीआई ने बताई है, लोकल एरिया बैंक्स की, वो कितने करोड़ है, फैक्चुअल क्वेश्चन है. ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम डिपॉजिट ड्यूरेशन ऑफ हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, फैक्चुअल क्वेश्चन है, बिल्कुल डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है. फाइनेंस करंट अफेयर्स में दे कैन आस्क यू अबाउट सेबी और आईआरडी और पीएफआरडीए रेगुलेशंस, और दे कैन आस्क यू फाइनेंस रिलेटेड न्यूज सच एज जीडीपी प्रोजेक्शंस, रेपो रेट सेटिंग्स एंड इन्फ्लेशन. या फिर फाइनेंस के जो फेज 2 के टॉपिक्स हैं, जैसे कि डिजिटल बैंकिंग, फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्टॉक मार्केट, रिस्क मैनेजमेंट, ये सारे टॉपिक्स आपके फेज 2 के सिलेबस में है, जो भी मैं थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा. उनसे रिलेटेड करंट अफेयर्स भी वो फेज 1 में पूछ लेते हैं. जैसे मैंने यहाँ सेबी का बताया, अब आप ये देखिए, ये क्वेश्चंस आपके 2024 में ही आए थे. ये सेबी की कोई नोटिफिकेशन आई थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है. फिर सेबी की एक एफपीआई पे नोटिफिकेशन आई थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है. ईएसआई करंट अफेयर्स में भी क्वेश्चंस रिलेटेड टू जीडीपी प्रोजेक्शंस, रेपो रेट सेटिंग्स, इन्फ्लेशन एक्सेट्रा, और जितने भी इकोनॉमिक्स के आपके फेज 2 के टॉपिक्स हैं, जैसे कि रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, मॉनेटरी पॉलिसी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम पेपर में देख सकते हैं. देन देयर आर नॉर्मल करंट अफेयर्स सच एज एमओयूज, समिट्स, ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, मेजर इवेंट्स और डेज अलॉन्ग विद थीम्स, obituaries, appointments, major tournaments in sports, science, technology, awards and honors. This is something which is common to every other exam in India. तो ये आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, but their level in RBI is high. मतलब यही सेम न्यूज़ अगर आप बैंकिंग
वाली मैगजीन से पढ़ेंगे या एसएससी वाली मैगजीन से पढ़ेंगे, उससे आरबीआई में जो क्वेश्चन आएंगे ना वो नहीं होंगे, बिकॉज यहाँ पे टेढ़े क्वेश्चन आते हैं इन्हीं एरियाज में से, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। और इसका वेटेज अब 15 से 18 मार्क है। एक टाइम था इसका वेटेज 40 मार्क्स तक हुआ करता था आउट ऑफ 80, बट इसका वेटेज धीरे धीरे कम कर दिया है। जैसा मैंने बोला, आरबीआई नोटिफिकेशंस का वेटेज धीरे धीरे बढ़ गया है। स्टैटिक में बात करें तो कुछ क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मल कॉन्सेप्ट्स पे, सच एज डेरिवेटिव्स, बॉन्ड्स, इन्फ्लेशन, जो कि आपके फेज 2 टॉपिक से ही रिलेटेड होते हैं। सो अगर आप अपना फेज 2 का अच्छे से पढ़ लेंगे, ये सारे टॉपिक्स आपके हो जाएंगे। और ये सोर्सेज हैं। स्कीम्स के लिए आई वुड रिकमेंड यू पीआईबी वेबसाइट, रिपोर्ट्स के लिए अगेन पीआईबी वेबसाइट एंड हिंदू न्यूज़पेपर, आरबीआई नोटिफिकेशंस के लिए आरबीआई वेबसाइट, फाइनेंस करंट अफेयर्स के लिए लाइव मिंट एंड बिजनेस स्टैंडर्ड, ईएसआई करंट अफेयर्स के लिए आई वुड रिकमेंड यू हिंदू न्यूज़पेपर एंड पीआईबी वेबसाइट, नॉर्मल करंट अफेयर्स जो मैंने अभी आपको बताया हिंदू न्यूज़पेपर, एंड फॉर स्टैटिक सिलेबस योर फेज 2 सिलेबस फ्रॉम वेयर एवर यू आर डूइंग इट दैट विल सफाइस फॉर दिस पार्ट। और जो मैंने अभी आपको सोर्सेज बताए, दिस इज अ प्रूफ। इफ यू सी दी एनालिसिस ऑफ 2024 पेपर, अगर मैं 4 सोर्सेज यही ले लूँ, या मैंने बिजनेस स्टैंडर्ड भी बताया, ठीक है, यहाँ से 39, 49, 57, अगेन अराउंड 67 to 70 क्वेश्चंस आर फ्रॉम दीज टॉप 5 सोर्सेज जो मैंने अभी आपको बताए हैं। सो यू शुड बी मेनली ट्राइंग टू कवर दीज सोर्सेज इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू कवर एवरीथिंग विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। या फिर आप कुछ इंस्टीट्यूट्स की कंपाइल्ड मैगजीन्स भी पढ़ सकते हैं अगर आपके पास कोई पेड कोर्स है। जैसे एडुटैप में हम बहुत सारे कंपाइल्ड मैगजीन्स देते हैं, स्कीम्स के लिए स्कीम्स टैब, ठीक है, रिपोर्ट्स के लिए रिपोर्ट्स टैब, आरबीआई नोटिफिकेशंस के लिए आरबीआई न्यूज़ टैब, एंड ऑल दीज 3 करंट अफेयर्स आर कवर्ड इन आवर करंट टैब। तो इस तरह से आप सेल्फ प्रिपरेशन भी कर सकते हैं या कंपाइल्ड मैगजीन से पढ़ सकते हैं। कंपाइल्ड मैगजीन विल सेव लॉट ऑफ टाइम which otherwise you might be spending on searching, but self preparation से जो मैंने ये sources बताए हैं आप भी अपने आप compile कर सकते हैं। Now let's move on to the phase 2. Phase 2 का जो pattern है, there are 3 papers: economic and social issues which is known as ESI, English is your second paper, and paper 3 is finance and management which is FM. All these 3 paper are of 100 marks. So जो आपका total weightage है वो 300 marks है और 75 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। सो टोटल फाइनल मेरिट लिस्ट इज मेड आउट ऑफ 375। अब जो पेपर 1 और पेपर 3 है, ये वाला ESI और FM, इनमें 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है और 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव, दोनों पेपर में। जो पेपर 2 है इंग्लिश वाला, ये 100 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव होता है। टोटल पूरा डिस्क्रिप्टिव है, देयर वुड नॉट बी एनी MCQ इन दिस। सो लेट्स ट्राई टू डिस्कस द स्ट्रैटेजी फॉर FM फर्स्ट, ठीक है। अब FM के पेपर में इट इज बेसिकली कंसिस्टिंग ऑफ 2 सब्जेक्ट्स, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। दोनों का वेटेज ऑलमोस्ट 50-50 मार्क्स रहता है। लेट्स ट्राई टू फर्स्ट डिस्कस अबाउट द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का अगर आप ये सिलेबस देखेंगे, आई हैव हाईलाइटेड द मेन टॉपिक्स इन येलो, एंड आफ्टर दैट ये सिलेबस आपका निकल के आता है। यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड नोट डाउन दिस टॉपिक्स, बट द बिगर क्वेश्चन दैट कम्स टू द माइंड ऑफ एस्पिरेंट इज दैट आर देयर एनी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हियर? द आंसर इज नो, बिकॉज मैनेजमेंट में 50 में से मैं बोलूंगा टारगेट होना चाहिए 45 का। अगर आप यहाँ पे मार्क्स ले गए ना, आपके चांस बढ़ जाएंगे, बिकॉज दिस सब्जेक्ट इज वेरी जेनरिक, बहुत ही कॉमन से टॉपिक है, कोई भी समझ सकता है। एंड देर इज अ लिमिटेड सिलेबस because there are no current affairs in management which makes it easy to cover the management syllabus first. और मैनेजमेंट में अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं ना, 1 मार्कर क्वेश्चंस बहुत सिंपल आते हैं, 2 मार्कर क्वेश्चंस पैराग्राफ बेस्ड होंगे। पैराग्राफ्स आर लेंदी विच माइट बी टाइम कंज्यूमिंग बट दे आर डूएबल। एक नई चीज जो इंट्रोड्यूस हुई है वो है आरसी बेस्ड क्वेश्चंस। आरसी बेस्ड क्वेश्चंस में क्या होता है, दे विल गिव यू अ बिग पैराग्राफ and based on that they will ask you questions the answer to which lies in the paragraph itself। जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बना दिया है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, the passage mentioned theories that have expanded beyond their original development in Russia, which theory is being referred to? पैसेज में वाइगोत्स्की थ्योरी का मेंशन है और आंसर भी इसका वाइगोत्स्की थ्योरी था। बिल्कुल आरसी बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसी एक क्वेश्चन पूछा गया था दैट व्हाट टूल डज द कंपनी मेंशन इन द पैसेज ऑफर टू द ऑर्गेनाइजेशन? तो यहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा हुआ था ऑनलाइन सर्वे टूल, इसका आंसर भी सर्वे टूल था। तो ये आरसी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं, पैनिक नहीं करना है, एक तरह का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही मैं बोलूंगा। मैनेजमेंट के लिए बुक्स की बात करें ऑब्जेक्टिव पार्ट के लिए, तो प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट बाय LM प्रसाद,
Organizational Behavior by L.M. Prasad. Both these books are by L.M. Prasad. You would have to read both of them, but selectively, mapping to the syllabus. Business Ethics and Corporate Governance to cover Ethics and Corporate Governance. This is by B.N. Ghosh. ये 3 किताबों से आपका पूरा सिलेबस हो सकता है. मैनेजमेंट डिस्क्रिप्टिव भी आता है, ठीक है. जैसे मैंने बोला एफएम के पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आएंगे, डिस्क्रिप्टिव भी आएंगे. तो मैंने मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव पार्ट अभी डिस्कस किया. डिस्क्रिप्टिव की बात करूं तो क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं, थ्योरेटिकल आते हैं, जैसे हमारे 10th क्लास में आते थे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं. इसमें कुछ भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते हैं. बट अगर आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं तो सिंपल क्वेश्चंस के आंसर लिखते हुए यू हैव टू गिव लॉट ऑफ एग्जांपल्स. फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशनल एंड ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, ठीक है, उनके बीच में डिफरेंस बताइए. सो ऑब्वियसली यू कैन राइट इट डाउन, you can obviously write it down in a theoretical perspective, but if you can put some examples, ठीक है, कि बिल गेट्स ट्रांजैक्शनल लीडर थे, क्यों थे, हेनरी फोर्ड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर थे, क्यों थे. दिस मेक्स इट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन द एग्जामिनर कि आप थोड़ा अलग तरह से लिख रहे हो. तो आप इसको जरूर करें, ऐसे एग्जाम्पल्स आप जरूर इकट्ठे करें ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स विच यू कैन राइट इन योर पेपर. मैनेजमेंट डिस्क्रिप्टिव के लिए जो मैंने ऑब्जेक्टिव के लिए बुक्स बताई थी, यू कैन यूज द सेम बुक्स. एडिशनली यू कैन यूज दिस बुक जो कि स्टीफन पी रॉबिन्स और इंडियन ऑथर ने मिलकर लिखी है, निहारिका वोरा ने, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पे. इन दिस बुक देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट. सो आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं और अपने आंसर्स में लिख सकते हैं. नाउ मूविंग ऑन टू द फाइनेंस पार्ट, ठीक है, जो फाइनेंस का 50 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें स्टैटिक आई वुड से इज 50% एंड करंट इज 50%. अर्लियर द स्टैटिक वेटेज वाज हायर, मतलब स्टैटिक 70 मार्क्स तक का आता था, करंट सिर्फ 30 मार्क का आता था, बट अब धीरे धीरे करंट ज़्यादा होता जा रहा है. अगर मैं इसको ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव में बांटूं तो ऑब्जेक्टिव आउट ऑफ 50 is 25 marks, descriptive is 25 marks. Further in objective, out of this 25 marks, weightage of static would be 12, current would be 13. In the descriptive, static would be 10, current would be 15. So overall current is dominating both the objective and the descriptive section. सबसे पहले स्टैटिक के बारे में डिस्कस करते हैं. स्टैटिक पार्ट इन दी ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव पार्ट के ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव में स्टैटिक में क्या पढ़ना है. इफ आई टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव पार्ट, देन now static chapters which are important for you in the finance would be income statement, cash flow ratios, primary and secondary market risk management, inflation, derivatives, bonds, functions of RBI, fiscal policy, financial institutions, banking system and BFCs. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑब्जेक्टिव के एंगल से, बिकॉज मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आस्क्ड आर फ्रॉम दीज चैप्टर्स. और न्यूमेरिकल अभी नहीं आ रहे हैं. देयर लॉट ऑफ टेक्निकल चैप्टर्स लाइक इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो, डेरिवेटिव्स, बॉन्ड्स, जहाँ से न्यूमेरिकल आ सकते हैं. बट आप लास्ट 4 ईयर्स में देखिए न्यूमेरिकल्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हैं. सो इट्स अ ट्रेंड, डू नॉट गो विद न्यूमेरिकल्स, डू नॉट ट्राई टू स्पेंड टाइम ऑन न्यूमेरिकल्स. ज़्यादा टाइम में तो करें, कम टाइम में तो छोड़ दें. नाउ कैन आई लीव ऑल अदर चैप्टर्स, मैंने बहुत लिमिटेड चैप्टर्स बताए हैं, सिलेबस बहुत बड़ा है, क्या हम बाकी चैप्टर्स छोड़ सकते हैं. मैंने ये ऑब्जेक्टिव की ओरिएंटेशन से बताए थे. बट इफ आई वांट टू टॉक अबाउट डिस्क्रिप्टिव, तो डिस्क्रिप्टिव में जो क्वेश्चन आते हैं दे कैन बी फ्रॉम दिस लिस्ट इटसेल्फ. जैसे कि ये डेरिवेटिव्स पे क्वेश्चन आया था, डेरिवेटिव्स इन आर लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स. बट इन द डिस्क्रिप्टिव देयर कैन बी क्वेश्चंस ऑन अदर एरियाज ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल देयर हैव बीन अ क्वेश्चन ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है, और फाइनेंशियल इंक्लूजन हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में नहीं है बट सिलेबस में है. सो हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको ऑब्जेक्टिव के लिए रिलाई कर सकते हैं, बट डिस्क्रिप्टिव के लिए आई वुड हैव टू रीड एवरी अदर चैप्टर. एंड फॉर डिस्क्रिप्टिव आई नीड नॉट गो इनटू मच डिटेल, मैं थोड़ा ऊपर ऊपर से भी पढ़ सकता हूँ. एंड दीज आर द बुक्स दैट यू कैन फॉलो फॉर फाइनेंस स्टैटिक. इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, प्रिंसिपल्स इन प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग एंड अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स. ठीक है, ये 3 बुक्स में आपको तकरीबन सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे. You would have to search a lot, but once you search it, it would become easier to read. These books are not really great in terms of understanding. So if you have finance or economics background, then only read it. Otherwise, it would be very tough to understand from these books. Now moving on to the finance current, ये वाला, ठीक है, because static हमने डिस्कस कर लिया है. करंट की डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव पार्ट में. फाइनेंस करंट में ऑब्जेक्टिव जो आपको आते हैं, first is normal current affairs in which they can ask you questions on RBI notifications or SEBI notifications,
or news related to Ministry of Finance. This is the most important area, RBI and SEBI notifications. Then they can ask you questions on schemes. This is very rare, but there are certain schemes by Ministry of Finance such as Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, Suraksha Bima Yojana, on which questions in your finance section can be asked. Then there are 5 to 6 reports which are very important from the angle of finance current affairs, economic survey and union budget. They are particularly important if they are released close to your exam. मतलब एग्जाम के अगर 3-4 महीने के पहले ये रिपोर्ट्स रिलीज की गई हो तभी इंपॉर्टेंट है, अगर उससे पुरानी है तब उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. Financial Stability Report by RBI, Annual Report by RBI, Currency and Finance Report by RBI, and Reports on Trends and Progress in the Banking Sector by RBI. ये सारी रिपोर्ट्स आपने करनी है ऑब्जेक्टिव सेक्शन के लिए. ये कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा अभी आगे जाकर. और फाइनेंस करंट डिस्क्रिप्टिव पार्ट, ठीक है, ये हमने ऑब्जेक्टिव के लिए बोला कि आप आरबीआई से भी नोटिफिकेशंस कर लो, स्कीम्स कर लो और ये रिपोर्ट्स कर लो. और जो ये डिस्क्रिप्टिव में करंट अफेयर्स आते हैं, ये कहाँ से आते हैं? जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं, या तो ये इन्हीं रिपोर्ट से होंगे जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताए थे. फ्रॉम दीज रिपोर्ट्स दे कैन ऑल्सो पुट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस. तो इन रिपोर्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है, एनालिटिकल एंगल से भी पढ़ना है. या फिर एडिटोरियल से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. आई हैव सीन दैट व्हाटएवर एडिटोरियल्स आर कमिंग इन द न्यूज़पेपर्स विद इन 6 months prior to your exam, they become very important for your exam. So that was about FM. Let's now move to ESI. ठीक है. If I talk about ESI, तो ESI is mainly current oriented. यहाँ पे स्टैटिक का वेटेज काफी कम है. 100 मार्क्स में से 75 मार्क्स करंट रहेगा, 25 मार्क्स स्टैटिक रहेगा. If I divide it into objective and descriptive are both 50 marks. In the objective part, static is very less. It is dominated by current affairs. In the descriptive part, static has a decent weightage of 20 marks, but again it is dominated by current. तो सबसे पहले हम इस स्टैटिक पार्ट को डिस्कस करते हैं जो ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव पेपर में आता है. सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन द स्टैटिक पार्ट? अगर मैं ऑब्जेक्टिव एंगल से बात करूं, दीज आर द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स: इन्फ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल इश्यूज एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, ये समझने वाले भी हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से आते हैं. और जो मैंने ये 5 मार्क्स लिखा है, रिसेंटली ये 0 ही हो गया है. मतलब कोई भी ऑब्जेक्टिव में स्टैटिक क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है. बट दैट डजंट मीन कि आप ये चैप्टर पढ़ो मत, बिकॉज इवन टू अंडरस्टैंड द करंट अफेयर्स यू वुड हैव टू अंडरस्टैंड दीज चैप्टर्स. Next is, can I leave all other chapters? Again, this is what I told you from objective angle. अगर मैं descriptive की बात करूं, so in descriptive, yes, the questions can be even from these important chapters. जैसे कि monetary policy पे क्वेश्चन आया था जो हमारी important चैप्टर की लिस्ट में है. Sustainable development पे क्वेश्चन आया था, अगेन जो हमारी important चैप्टर की लिस्ट में है. But apart from these, there have been other chapters also जहां से क्वेश्चन आए हैं. For example, rural India needs to give priority to women led development. तो ये हमारा कहीं ना कहीं जेंडर इशू से रिलेटेड है, which is not in our list of important topics, but still I would have to read it at least at a high level, not at a very in-depth level, because यहाँ से descriptive question आ सकते हैं. तो चैप्टर सारे करने हैं, बट ये चैप्टर बहुत अच्छे से करने हैं जो आपकी स्क्रीन पे है. बाकी चैप्टर्स को आप ऊपर ऊपर से पढ़ सकते हो. Now moving on to the करंट अफेयर्स. तो आपके 50 में से 45 मार्क्स के करंट अफेयर्स आते हैं. मतलब 50 के ही आते हैं. जैसा मैंने बोला, इस साल 2024 में तो ये 0 मार्क्स का स्टैटिक आया था. तो यहां पे क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहला गवर्नमेंट स्कीम्स, देन रिपोर्ट्स एंड देन ईएसआई रिलेटेड करंट अफेयर्स. दीज 3 आर द इंपॉर्टेंट एरियाज. अब पहले क्या होता था, स्कीम्स का वेटेज बहुत होता था. आउट ऑफ 45 जो हमने यहाँ पे बात की है, 45 में से 30 मार्क्स के स्कीम आते थे. बट अभी थोड़ा ट्रेंड चेंज हो रहा है. इफ आई टॉक अबाउट द रीसेंट ट्रेंड, रिपोर्ट्स 33 मार्क्स के आए, स्कीम 10 मार्क के आए और ये 5 से 7 नंबर के आए. टोटल 50 मार्क्स का ये मिला के पेपर बना था क्योंकि स्टैटिक आया ही नहीं था. तो रिपोर्ट्स आर ट्रेंडिंग, बट यू नेवर नो कि अगले साल दोबारा स्कीम्स में से ज्यादा क्वेश्चन हो जाए. तो आपको करने तो दोनों ही पड़ेंगे. ठीक है, और स्कीम्स आपको करनी है 6 से 9 महीने प्रायर टू योर एग्जाम. ईएसआई रिलेटेड करंट अफेयर्स ऑल्सो 6 to 9 months प्रायर टू योर एग्जाम. एंड रिपोर्ट्स आप थोड़ी ज्यादा कर लीजिए, अप टू 12 months प्रायर टू योर एग्जाम, बिकॉज वी हैव वेरियस इंस्टेंसेस जहां पे उन्होंने पुरानी रिपोर्ट्स भी पूछी हैं. स्कीम्स में पेंशन रिलेटेड स्कीम्स कीजिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन रिलेटेड स्कीम्स कीजिए जैसे कि जनधन योजना, संपदा योजना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जैसे कि नेशनल अप्रेंटिसशिप,
फिर जो हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड स्कीम है, जेंडर इशू से रिलेटेड स्कीम है, उनको करना है। बाकी आपके फेज 2 के सिलेबस से जो रिलेटेड स्कीम्स हैं, सोशल जस्टिस से, अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन, पॉवर्टी एलिवेशन, एनवायरनमेंट, वो भी करनी है। बाकी ESI के जो कुछ टॉपिक्स हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉपरेशन, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, मॉनेटरी पॉलिसी, उनसे रिलेटेड करंट अफेयर्स करने हैं। रिपोर्ट्स में इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन बजट, ये ध्यान से कर लीजिए, सारी रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट RBI की है, करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट RBI की है, RBI की एनुअल रिपोर्ट, reports on trends and progress in banking industry and reports by World Economic Forum such as Global Risk Report। ये सारी 8-9 रिपोर्ट्स आपको करनी है। इसके अलावा अदर रिपोर्ट्स रिलेटेड टू फेज 2 सिलेबस, आपके फेज 2 का जो सिलेबस है उससे रिलेटेड कोई रिपोर्ट आ जाए, जैसे कि जेंडर इक्वालिटी पे, इनइक्वालिटी पे, एनवायरनमेंट पे, पॉवर्टी पे, माइग्रेशन पे, अर्बनाइजेशन पे, वो सारी रिपोर्ट्स भी आपको करनी है। रिपोर्ट्स का वेटेज काफी हाई रहा है ऑफ लेट, पहले इतना नहीं होता था, अब इनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब स्कीम्स को कैसे हम इफेक्टिवली पढ़ सकते हैं, बिकॉज अगर मैं इन सारे एरियाज में स्कीम्स की बात करूं, दे वुड बी 1000 इन नंबर, मैं सारी स्कीम्स नहीं पढ़ सकता। सो फोकस ऑन स्कीम्स विच आर इन न्यूज ऑन PIB। PIB इज अ गवर्नमेंट वेबसाइट। इस वेबसाइट पे जाइए, जो भी स्कीम आपके एग्जाम से 5 से 6 महीने पहले या 6 से 9 महीने पहले न्यूज में है, उन्हीं स्कीम्स को पढ़िए, सारी स्कीम्स को मत पढ़िए। Schemes which are in news on PIB 6 to 9 months prior to your exam are important, and while you are reading the scheme, these are the important dimensions that you need to remember. Nodal ministry किसने लॉन्च की है, लॉन्च ईयर क्या था, फंडिंग पैटर्न क्या है, स्टेट और सेंटर कितना कितना फंड करते हैं, बजट एलोकेशन क्या है इसका, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और टारगेट बेनिफिशियरीज कौन है, ये पैरामीटर्स पे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिपोर्ट्स को कैसे कवर करना है, जो ये वाली रिपोर्ट्स हैं जो मैंने यहां बताई हैं, जस्ट रीड दी समरी ऑफ दीज रिपोर्ट्स, पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़नी है। जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे और यूनियन बजट की समरी PIB पे आती है, बाकी रिपोर्ट्स की समरी या तो उन रिपोर्ट्स में ही मिलेगी या न्यूज़पेपर्स में मिलेगी, बस समरी ही पढ़ो, पूरी रिपोर्ट यू विल नॉट बी एबल टू रीड। जो ये वाली रिपोर्ट्स हैं, जो मैंने बोला फेज 2 के सिलेबस से आपने जेंडर इक्वालिटी, एनवायरनमेंट, पॉवर्टी, जितने भी फेज 2 के टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड जो रिपोर्ट्स पढ़नी है, ओनली रीड द रिपोर्ट्स विच आर रिलीज बाय नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ स्टेचर। मतलब ऐसी आलतू फालतू ऑर्गेनाइजेशन ने कोई रिपोर्ट रिलीज की है वो आपने नहीं पढ़नी है। जो भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ब्रांड नेम है, सच एज IMF, वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ, OECD, यूनेस्को, ADB, UN, WTO, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ILO, इन्हीं की रिपोर्ट्स पढ़नी है। नेशनल लेवल पे किन किन का ब्रांड नेम है, RBI, SEBI, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नीति आयोग, इन्हीं की रिपोर्ट्स पे ज्यादा फोकस करना है। नाउ मूविंग ऑन टू दी करंट अफेयर्स फॉर डिस्क्रिप्टिव पार्ट विच इज अराउंड 30 मार्क्स। सो डिस्क्रिप्टिव में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, या तो वो इन्हीं रिपोर्ट्स में से आएंगे जो भी मैंने आपको ऑब्जेक्टिव के लिए बताए हैं। यूनियन बजट से बहुत बार डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आया है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आया है। तो ये वाली रिपोर्ट यू वुड हैव टू आल्सो रीड देम फ्रॉम द एनालिटिकल एंगल एंड फ्रॉम द फैक्चुअल एंगल, बिकॉज ये ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों में आ सकती हैं। और जैसा कि मैंने आपको फाइनेंस के लिए बोला था, प्लीज रीड एडिटोरियल्स विच आर रिलेटेड टू फेज 2 टॉपिक्स इन ESI, जेंडर इनइक्वालिटी, अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन, पॉवर्टी, मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। इसके लिए हिंदू न्यूज़पेपर में जो भी एडिटोरियल्स आए आपके फेज 2 के सिलेबस से रिलेटेड, वो आपको पढ़ने चाहिए। और कुछ टॉपिक वाइज फॉर्डर बनाएं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू विल गेट गुड मार्क्स इफ यू आर एबल टू राइट सम फैक्ट्स एंड ट्रेंड्स इन योर आंसर्स इन द डिस्क्रिप्टिव। तो टॉपिक वाइज एक एक्सेल बनाएं, हर टॉपिक के रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लिखें जो डिफरेंट रिपोर्ट्स में आए हैं, डिफरेंट स्कीम्स में आए हैं, ठीक है। किसी इंपॉर्टेंट एंटिटी जैसे फाइनेंस कमीशन ने कुछ डेटा दिया है, उन डेटा पॉइंट्स को ही याद कीजिए। हर एरिया पे यू नीड नॉट रिमेंबर 100 पॉइंट्स, जस्ट रिमेंबर 10 पॉइंट्स, 12 पॉइंट्स, दैट इज सफिशिएंट टू राइट अ गुड आंसर आउट ऑफ दोस 10 पॉइंट्स। लास्ट में अबाउट इंग्लिश, आई वुड से टोटल डिस्क्रिप्टिव है, इसमें एक एसे आता है, एक प्रेसी, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 3 क्वेश्चन आते हैं। एसे इज यूजुअली ऑन टॉपिक्स लाइक 4 ऐसे आते हैं, आपको एक लिखना होता है। जो 4 टॉपिक रहते हैं, 1 टॉपिक इज यूजुअली इकोनॉमिक, फाइनेंस और मैनेजमेंट रिलेटेड, देन सेकंड इज टेक्नोलॉजी और इंटरनेट रिलेटेड, थर्ड इज अब्स्ट्रैक्ट, फोर्थ इज सोशल इशू एंड फिफ्थ इज काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। आई विल गिव यू एग्जांपल्स।
ये 2023 के टॉपिक हैं. क्लाइमेट चेंज पे आया था विच इज़ रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, डिजिटल करेंसी विच इज़ रिलेटेड टू फाइनेंस, motivation methods of modern employees is related to management, multilinguistic social media account this is related to social media और टेक्नोलॉजी और इंटरनेट. तो यही मेन एरियाज हैं जहाँ से हर साल ऐसे टॉपिक्स पूछे जाते हैं. सो इफ यू कैन कवर मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स इन दीज एरियाज आई थिंक यू विल बी एबल टू फाइंड एटलीस्ट वन ऐसे टॉपिक. जो प्रेसी है वो एक न्यूज़पेपर में से पैराग्राफ आता है जो आपको शॉर्टन करके लिखना होता है. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन can be on any topic, it can be on sports, psychology, health, any topic, there is no pattern to this. बाकी डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए मैं आई वुड रिकमेंड दैट यू स्टार्ट रीडिंग एडिटोरियल्स इन हिंदू एंड इकोनॉमिक टाइम्स और लाइव मिंट और मे बी on alternate days in different newspapers. And once you read an editorial, wait for 3 days. After you have waited for 3 days, then type that editorial in Notepad. Do not write it on Word. Type it in Notepad in your own language. And that is the reason I asked you to wait for 3 days, because when you wait for 3 days and then you write, you would write in your own language rather than just copying the direct language that you would have read. ठीक है. और जो भी आप लिखें, use Grammarly to self evaluate. Grammarly is a website. Whatever you post there, it gives you lot of ideas to improve what you have written. मतलब आपके एरर सारे दिखा देगा वो. Punctuation, spelling errors, you can improve upon them by being conscious about them. If you type these editorials on daily basis, your typing speed will improve. You will also start writing in a better structure, which is very very important. And your content will get enriched, because most of the students complain कि सर हमसे content अच्छा नहीं लिखा जाता है. तो कंटेंट अच्छा लिखने के लिए आपको एडिटोरियल्स पढ़ने पड़ेंगे जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपको मिलेंगे. और प्रैक्टिस करने के लिए डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, इंग्लिश हो या एफएम हो या ईएसआई हो, प्लीज टाइप इट on your laptop. Do not write it in your copy, that is of no use. And type your answers, at least I would say 1 or 2 answers daily, because it's a skill that needs to be developed over a period of time. Just writing answers 10 days before the exam will not help. So with that, I take your leave. I hope this was useful. This would have given you a lot of insights as in how to prepare for your exam. Thank you.